नमस्ते बच्चों। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। यस, तो चलिए आज भी हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे अंडर दैट मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, एंड अगर टाइम रहा तो फिर हम आज ही प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। मींस मोशन अंडर ग्रेविटी का प्लेनर मोशन वाला पार्ट, यानी अब स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय वो एक अलग पाथ में जाएगा। जैसे कि कोई भी बैट्समैन जब क्रिकेट में कोई भी बैट्समैन जब 6 हिट करता है, या फिर कोई भी फील्डर विकेट कीपर को बॉल थ्रो करता है, देन हाउ द पाथ इज एंड व्हाई इट गोज लाइक दैट, वी विल टॉक अबाउट इट इन दैट हेडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। एंड एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो चलिए मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यस, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर्स ऑन व्हाट्सएप, आई हैव सीन, सो इट्स गुड कि आपको समझ में आ रहा है। एंड चलिए, जिनसे भी थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं या जिनसे नहीं हो पाया है वो क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ जो मैंने आपको दिया था। इट वॉज ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर टेक्स t1 seconds to reach the ground. When projected vertically downward from the same point with same speed, it takes t2 seconds, yes, to reach the ground. So it was find time taken by it to reach the ground when it is dropped from the same point. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो एक टावर है, यस, और उस टावर से बॉडी को पहले प्रोजेक्ट किया गया ऊपर, दिस इज द ग्राउंड। सो द फर्स्ट केस it is projected upward, yes. In second case it is projected downward, so it will go up, will be at rest, then will come down, yes. उसके बाद वो नीचे आएगी, will come down and will be having certain speed downward direction, yes. तो कुछ स्पीड से हिट करेगी, we are not interested in that. पर इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इस जर्नी में वो कितना है, t1 seconds, ठीक है। ओके, सेकेंड में बोलता है, सेकेंड केस में बोलता है वो कि यही बॉडी को अगर नीचे प्रोजेक्ट कर दिया जाए, तो ये कितनी देर में पहुंच जाती है। तो ये पहुंच जाती है आपकी नीचे, विच इज t इक्वल टू कैपिटल T, विच इज t2 seconds इट टेक्स। अब बोल रहा है कि अगर इस बॉडी को रेस्ट से रिलीज कर दिया जाए, मीन्स इट इज ड्रॉप्ड, दैट इज u is 0, then how much time it will take to reach the ground. So these are three different situations. Here you are supposed to find the time of flight in terms of t1 and t2. ठीक है, these are three different situations. So one by one we will solve. This is my first situation, this is my second situation, this is my third situation. So first of all I'll go to my third situation only and we'll see what is the answer I have. So let us consider height of this tower is h, जो कि मुझे दी नहीं गई है, मुझे एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो in the third situation what you can write here is time of flight पता ही है। So third situation का time of flight आपको आता ही है, which is root of 2h by g. But if you can find h by g term, your question will be solved. Now I'll go to first. So in first what I have is initial velocity. Okay, some NEET student, I don't remember the name, has requested me to take a question where I have to consider downward direction as positive, upward direction as negative. So I'm doing it in this question only. So what I am taking is I am taking upward direction negative, downward direction positive, and he is curious what changes will be there. Anyway, so see what will be the changes. So under this convention, what is my initial velocity? It will be minus u, because upward pointing negative, acceleration will be plus g, downward मैंने positive लिया है, displacement is downward, you see displacement is this, initial to final, so it is what, this displacement is plus h, क्योंकि downward आपने positive लिया है, yes. And you are interested in time, so use that formula, s is equal to u delta t plus half a delta t का whole square. So s is h is equal to u is minus into t, which is t1. Here it is given to you as t1. So
what you can write, u into t1 plus half a is plus g into t1 square. So you got this h is equal to minus ut1 plus half gt1 square. So this is my equation number 2. Now one thing I want to tell you here, simple, very simple, is अगर मैंने रेगुलर किया होता, जो मेरी आदत है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो यहाँ ये माइनस रहा होता, ये प्लस रहा होता और ये माइनस, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ती फाइनली. नाउ सेकंड केस के लिए सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ का जो u है इस हिसाब से प्लस u हो गया, डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो गया और जो टाइम इंटरवल है वो t2 दिया है. यही इक्वेशन यहाँ पे भी लगा रहा हूं मैं. तो क्या मिलेगा मुझे, h इज इक्वल टू यू t2 प्लस हाफ gt2 का स्क्वायर. नाउ सो आई वांट द वैल्यू ऑफ व्हाट, h बाई g. आप अगर यहां से देखें तो मैं h बाई g के लिए क्या करता हूं, इसमें से g कॉमन निकाल लेता हूं और डिवाइड कर देता हूं. तो h बाई g विल बी व्हाट, मैं जैसे ही g कॉमन निकालूंगा ये बन जाएगा u बाई जी t1 प्लस हाफ t1 स्क्वायर. और यहां से भी कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास h बाई g ये बन जाएगा u बाई जी t2 प्लस हाफ t2 square. Now I cannot find h by g until I eliminate this term. What is this term? Which is u by g into t1, this term. तो उसे एलिमिनेट करने के लिए आपने कभी 10th में शायद इक्वेशन सॉल्व किए हो कि इनके कोएफिशिएंट सेम कर लो. आपको u by g कैंसिल आउट कराना है, तो यहाँ t1 है वहाँ t2 है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो t1 से. मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद t1, so you get t1 h by g, you get u by g t1 t2 plus half t1 t2 square and frame this as your equation 4 and you multiply this equation, क्योंकि आपको ये टर्म कैंसिल आउट करना है, h by g फाइंड करना चाहते हैं. तो इसमें क्या आ रहा है आपके पास, u by g t2 है, यहाँ पे आप t2 से मल्टीप्लाई कर दें. तो ये t2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, t2 h by g u by g with a minus with t1 t2 plus half of t2 t1 square. This is my equation 3. Have I made any equation 2? No. तो make it 2 and 3. ठीक है, कुछ नहीं, सॉल्व किया है, बहुत सिंपल. यहाँ तक तो आप पहुंच ही गए थे, h by g चाहिए था. अब आप इसे एलिमिनेट करना चाह रहे थे, तो आपने क्या कर लिया, इस इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई और उस इक्वेशन को t1 से, जिससे इनके कोएफिशिएंट सेम आ जाए. आप बिंदास इनको ऐड कर दीजिए, ऐड. जैसे आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा t1 प्लस t2 इंटू एच बाई जी इज इक्वल टू, यहाँ ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ पे आपको हाफ, एक टर्म मिलेगा t1 t2 स्क्वायर प्लस दूसरा मिलेगा t2 t1 स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू गॉट. अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो आई एम टेकिंग फ्रॉम दैट इक्वेशन हियर. तो आपके पास आ रहा है t1 प्लस t2 इंटू एच बाई जी इज इक्वल टू हाफ. उसमें से आप t1 इंटू t2 कॉमन निकालिए. तो पहले पार्ट में से t1 गया और एक t2 गया, तो एक t2 बच गया. दूसरे में से भी t1 t2 बाहर गया, t2 गया तो गायब, t1 एक गया तो एक बच गया. तो ये आ रहा है t1 प्लस t2 से t1 प्लस t2 कैंसिल आउट हो गया. तो आपके पास h इंडीड 2h बाई जी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, t1 t2, जिसे मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूँ. यही तो हमारा एम था कि जो h बाई जी टर्म है उसकी वैल्यू मुझे मिल जाए ना. बाई 1 and 4 कैन आई राइट माई आंसर? यस, डेफिनेटली. So I'm writing here. So by 1 and 4, I can write my capital T, which is the unknown for me, is coming square root of T1 T2 and it is my answer. तो क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत लीनियर इक्वेशंस यानी वन वेरिएबल की जो इक्वेशंस रहते हैं वो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए. इसीलिए मैं बोलता हूँ 10 तक का मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं. ठीक है, ओके, चलिए. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम अभी सॉल्व करेंगे. लिखिए, वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप मतलब नल. ठीक है, एक नल है, उससे एक बूंद गिर गई, फिर कुछ टाइम बाद दूसरी गिर गई, उतने ही टाइम बाद तीसरी गिर गई, चौथी गिर गई, ऐसे बूंदें गिर रही हैं उससे पानी की रेगुलर इंटरवल पे. तो वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप
ठीक है, फुल स्टॉप, आगे लिखे, एट एन इंस्टेंट व्हेन द फोर्थ ड्रॉप इज अबाउट टू लीव, at an instant when fourth drop is about to leave the tap, find separation between the three successive drops, यानी पहली बूंद, दूसरी, इनके बीच का सेपरेशन, दूसरी, तीसरी और तीसरी, चौथी। ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन थ्री सक्सेसिव ड्रॉप्स। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कहीं कुछ दिया ही नहीं है भाई, सीधा बस रेशियो ही पूछ रहा है, तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज तो पता ही है कि इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, और दूसरी चीज कि ये जो ड्रॉप्स है वो रेगुलर इंटरवल पे लीव कर रहे हैं टैप को। तो ये दो बातें दी हुई हैं हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो सी हाउ वी विल सॉल्व। देखिए, तो मान लीजिए ये हमारा नल है, ठीक है, और इससे बूंदें गिर रही हैं। ठीक है, पहली बूंद यहां से गिरी होगी, पहली बूंद गिर गई भाई, पहली बूंद नीचे चल रही है, तो हियर इज द फर्स्ट ड्रॉप। ठीक है, सो हियर इज द फर्स्ट ड्रॉप, दिस इज फर्स्ट ड्रॉप। ठीक है, फिर यहां की होगी सेकेंड ड्रॉप, तो ये हो गई आपकी सेकेंड ड्रॉप। फिर यहां की होगी आपकी थर्ड ड्रॉप, और ये है आपकी फोर्थ ड्रॉप। मतलब बूंदें तो गिर रही हैं बराबर इंटरवल पे, पर हमने जब देखा तो हमने देखा कि तीन बूंदें हवा में हैं, अभी गिर रही हैं, चौथी जस्ट छूटने वाली है। ठीक है, तो अब एक बात समझो, अगर t इक्वल टू 0 पे पहली बूंद गिरी है, मान लेते हैं लेट ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट a regular interval of t naught seconds। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे गिरी होगी पहली ड्रॉप, t इक्वल टू t नॉट पे गिरी होगी दूसरी ड्रॉप, t इक्वल टू 2t नॉट पे गिरी होगी तीसरी ड्रॉप, एंड t इक्वल टू 4t नॉट पे गिरने वाली है, सॉरी 3t नॉट पे गिरने वाली है ये वाली। तो अभी जो इंस्टेंट हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है t इक्वल टू 3t नॉट, और जब पहली ड्रॉप गिरी थी तब इंस्टेंट हो रहा था कितना, t इक्वल टू 0। यस, 0 पे ये गिरी, t इक्वल टू t नॉट पे ये, 2t नॉट पे ये, 3t नॉट पे ये लीव करने वाली है। तो ये गिरी थी भाई t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे इसने चलना चालू किया था, चलना किया था t इक्वल टू t नॉट पे, इसने चलना चालू किया था t इक्वल टू 2t नॉट पे, और 3t नॉट पे ये तो अभी बेचारी यहीं पे है, इसने तो चलना चालू ही नहीं किया। तो नल से यहां तक की जर्नी, इसे मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ड्रॉप, दिस इज S1। इसे टाइम कितना मिल गया भाई, t इक्वल टू 0 से अभी कौन सा टाइम हो रहा है, 3t नॉट, तो इसके लिए जो डेल्टा t1 की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 3t नॉट। ठीक है, पहली ड्रॉप के लिए। दूसरी ड्रॉप का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो दूसरी ड्रॉप के डिस्प्लेसमेंट को मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, वो हो रहा है आपके पास S2। ठीक है, अभी तक का। और डेल्टा T2 कितना लिखोगे आप, डेल्टा T2 आपको मिलेगा, t नॉट पे ये रिलीज हुई थी, अभी टाइम 3t नॉट हो रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2t नॉट। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड ड्रॉप, इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है S3 अभी तक का, और इसको टाइम कितना मिला है चलने के लिए, डेल्टा T3 कितना है, डेल्टा T3 इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, t नॉट। तो बस यही मुद्दा है यहाँ पे
कि जो पहली ड्रॉप है उसे कितना टाइम मिला है 3t0, दूसरी ड्रॉप को कितना टाइम मिला है मूव करने के लिए 2t0, तीसरी ड्रॉप को t0 और चौथी ड्रॉप तो अभी मूव ही नहीं की है। सो अब पूछ रहा है रेशियो ऑफ सेपरेशंस। तो सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉप कितना है, ठीक है। जैसे अपन डेल्टा S12 बोल देते हैं, पहली दूसरी वो आएगी मेरे पास S1 माइनस S2। वैसे ही सेपरेशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सक्सेसिव बोला है उसने, सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, जैसे मैं S23 बोल देता हूं, इट विल बी S2 माइनस S3, बड़ा माइनस छोटा। उसके बाद सेपरेशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉप, it will be delta of S of 3 4, it will be S3 minus S4 which is 0 anyway, ये तो मूवी नहीं की है तो इसका वैल्यू तो S3 आएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे रेशियो चाहिए, इनका डिवाइड करना है मुझे, तो इससे पहले मुझे इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो एक एक करके चलो सॉल्व करते हैं अपन। लेट्स सॉल्व फॉर S1 फर्स्ट। तो S1 के लिए सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ड्रॉप को देखना है, फॉरगेट अबाउट अदर्स। तो जब पहली ड्रॉप यहाँ थी तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, दे आर फॉलिंग है ना फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g। तो मैं देखो इस क्वेश्चन में वापस एज यूजुअल साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन माइनस g, डिस्प्लेसमेंट S1 मेरे लिए अननोन है जिसे मैं निकालूंगा, और डेल्टा t हियर इज डेल्टा t1 विच इज 3t0। सो आई यूज S1 इज इक्वल टू ut वाला टर्म 0, हाफ ऑफ माइनस ऑफ g 3t0 का होल स्क्वायर। So you got S1 is equal to minus of 9g t0 square by 2. Yes, so keep it with you. Same way solve for S2 for second drop, उसका भी इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा था 0, एक्सेलरेशन उसके लिए भी कितना माइनस, डिस्प्लेसमेंट हम सॉल्व करना चाहते हैं उसका, और ये जो मेरा डेल्टा t है वो है 2t0 इसके लिए। यस, तो आपका जो S2 है वो कितना आ जाएगा 0 प्लस हाफ is माइनस जी इंटू 2t0 का होल स्क्वायर। तो जो S2 है वो आ जाएगा मेरे पास 4g t0 बाई 2, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसे 2g t0 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद बात करते हैं अपन S3 की। तो S3 के लिए भी आपका u0 है, एक्सेलरेशन माइनस g है, S3 आप फाइंड करना चाहते हैं। यस, तो डेल्टा t इसके लिए सिर्फ t0 है, तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी आपके पास S3 की 0 प्लस हाफ माइनस जी इंटू t0 का होल स्क्वायर। तो जो S3 है वो तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ ऑफ जी t0 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप सिचुएशन समझ गए, डायग्राम अगर बना लिए फिर बहुत इजी हो जाता है। तो आपको मिल गया S1 S2 S3, क्या आप रेस्पेक्टिव सेपरेशंस निकाल सकते हैं, व्हाई नॉट। सो व्हाट इज दिस, माइनस ऑफ 9g t0 square by 2 minus what is S2 which is minus of 4g t0 square by 2। अब 2 तो कॉमन ही है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, एक माइनस और एक प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ 5g t0 square by 2, पहला टर्म। दूसरा S2 इज माइनस ऑफ 4g t0 square by 2 माइनस ऑफ, दूसरा कितना है अपने पास, दिस इज 2 माइनस 3 हाफ ऑफ g t0 स्क्वायर। तो ये 4 में से एक गया 3 बचेगा, पर माइनस में 3g t0 स्क्वायर बाई 2, ये वाला टर्म, तो ये तो S3 के इक्वल है विच इज माइनस ऑफ हाफ g t0 स्क्वायर। अब मेरे क्वेश्चन ने जो पूछा है यहाँ पे, वो क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है आपसे दिस डेल्टा ऑफ S12 इज 2, delta of S13, I'm sorry not 13, 23 is 2, delta of S34 successive drops, तो वो कितना आ रहा है मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपने पढ़ा होगा, ऐसे सिंबल यूज करते हैं अपन, this is to this is to this is equal to what is the first term, minus of 5g t0 square by 2, then second minus of 3g t0 square by 2, then the third one minus of जी t0 स्क्वायर बाई 2। अब जो कॉमन है उसे आप कैंसिल कर सकते हैं इस रेशियो वाली एनालिसिस में, तो आपका जी t0 स्क्वायर एंड माइनस हर जगह से क्या होने वाला है, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म कितना बच गया, आपके पास बच गया 5,
फिर वहां कितना बच गया 3, फिर कितना बच गया 1, ये आपका आंसर है। द सक्सेसिव ड्रॉप्स के बीच का जो डिफरेंस है इट इज 5:3:1। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सी सेकेंड ड्रॉप और फर्स्ट ड्रॉप के इंटरवल्स को देखें तो इसे 2 t0 मिले, इसे 3 t0, तो इससे t0 सेकेंड ही ज्यादा मिला, इसे भी t0 सेकेंड ज्यादा मिला एज कंपेयर टू थर्ड। देन व्हाई द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज मोर देन थर्ड एंड सेकेंड? बिकॉज मोशन अंडर ग्रेविटी में पहले सेकेंड में बहुत कम चलता है बॉडी, क्योंकि उसका u 0 होता है, पर नेक्स्ट सेकेंड में उसके पास वेलोसिटी आ जाती है तो वो ज्यादा चलता है, नेक्स्ट सेकेंड में और ज्यादा चलता है, नेक्स्ट सेकेंड में और ज्यादा चलता है। समझ में आ रहा है? तो हर सेकेंड में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल नहीं करता। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दैट 5:3:1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप वीडियो वापस ले आके देखें। बेसिक चीज है बट बढ़िया है, ठीक है? क्लिक नहीं करती हमें कि इसे हम अप्रोच कैसे करें। ओके, then we'll move to our next question and you can note down the question. A particle is dropped from height 100 meter. Particle is dropped from height 100 meter. Another particle is projected with velocity 50 meter per second, 50 meter per second along same line of motion at same instant from ground vertically upward. So what is the scenario here? If particle, okay, let me explain to you. ठीक है, consider this as a particle, this as another particle. तो इसे मैं यहां से छोड़ रहा हूं, है ना, at t equal to 0। उसी टाइम पे फ्लोर से इसे ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूं with 50। ये नीचे गिर रहा होगा, ये ऊपर आ रहा होगा, ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, टकराएंगे, they will collide। Yes, this question is related to that idea only। लिख लीजिए। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड टाइम एंड पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड वेयर दे कोलाइड। टाइम एंड पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड वेयर दे कोलाइड। तो वो जहां कोलाइड कर रहे हैं वो टाइम एंड पोजीशन मुझे जाननी है। देखते हैं। चलिए, तो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बनाना चाहिए जरूर। तो फर्स्ट पार्टिकल, आई कॉल इट फर्स्ट पार्टिकल, इट इज ड्रॉप्ड। ठीक है, तो इसका जो u है वो क्या है, 0। और ये कब ड्रॉप किया गया, t इक्वल टू 0। और हाइट कितनी है ग्राउंड से, 100 मीटर। सो हियर इज द ग्राउंड। ओके, दिस इज ग्राउंड। Now, second particle, see, इसे इसी टाइम पे ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, कितनी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड से। यस, यही है, यस। इसी टाइम पे t इक्वल टू 0 पे ये नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा, समवेयर दे विल कोलाइड। क्वेश्चन यही है कितनी देर बाद कोलाइड कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, दिस इज माय सेकेंड पार्टिकल। ठीक है, मान लेते हैं दे कोलाइड हियर। और जब ये यहां कोलाइड कर रहे हैं तब कुछ ना कुछ टाइम हो रहा होगा, तो मान लेते हैं कि वो t सेकेंड बाद कोलाइड कर जाते हैं। ठीक है, किसी न किसी लोकेशन पे कोलाइड किए होंगे भाई, बिल्कुल, उसमें कोई इशू ही नहीं है। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट
ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. फर्स्ट पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड पार्टिकल? दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ second particle and the separation between them was 100 meter. So once you draw the diagram, you get clear picture what is going on and how to proceed. Yes. अब मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 निकाल लूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 निकाल लूं, दोनों को मैग्नीट्यूड को ऐड करूं, क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा और एक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, और आपने सीधा ऐड कर दिए तब तो वो एक मैथमेटिकल एडिशन हो गया, कुछ भी नहीं बताएगा वो हमें. यहाँ हमें तो क्या जानना है कि दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज इक्वल टू 100. सो विल हैव टू ऐड द मैग्नीट्यूड ऑफ देम, नॉट नेगेटिव वैल्यूज. ओके, तो सी हाउ विल प्रोसीड. सो फॉर फर्स्ट पार्टिकल यू कैन राइट, फॉर फर्स्ट पार्टिकल I am as usual taking this sign convention. ठीक है, so U is, बट एक बात ध्यान रहे, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बीच में साइन कन्वेंशन चेंज नहीं करना है. आपने स्टार्टिंग में जो डिसाइड कर लिया फिर उसी से सब कुछ सॉल्व करना है. डोंट चेंज इट इन बिटवीन, अदरवाइज आप फंस जाएंगे. ठीक है, सो U is 0, A is minus G, S is what I want to find, and delta T is T seconds, क्योंकि T equal to 0 से T equal to T तक कितना टाइम मिला है इसे सॉल्व करने के लिए? T seconds. Okay, so you can use this formula, S is equal to ut plus half a t square. So S is S1 is equal to U is 0 plus half a minus G into T square. So S1 is minus of half CT square. So as I was saying कि S1 आपका नेगेटिव आएगा, आया ना नेगेटिव, माइनस. ठीक है भाई, कोई इश्यू नहीं है. फॉर सेकेंड पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल की बात करते हैं. So for second particle, what is U? U is plus 50. What is A? Is minus G. What is delta T? Is T only. I want displacement. So same formula I will use. So I am using here the S is equal to ut plus half a t square. So it is S2. U is 50t plus half minus G into T square. So I got S2 is equal to 50t minus of half gt square. This is my equation 2. Now my S2 is already positive. See, S2 is already positive and here S1 is negative. अब मुझे इक्वेशन यूज करनी है. फ्रॉम डायग्राम आई कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ S1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ S2. दिस इज 100. माई इक्वेशन 3. सो जब भी हम मॉड लेते हैं तो मुझे अपना आंसर पॉजिटिव करना पड़ता है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो भी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा. सो आई विल गेट हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर प्लस पॉजिटिव जैसा है वैसा ही रहता है. सो 50t माइनस हाफ सी टी स्क्वायर. अब ये गलती मत करना कि इस माइनस को प्लस कर दिया, क्योंकि H2 एक नंबर है. ये ओवरऑल जब आप इसमें t पुट करेंगे तो ये जो ओवरऑल है ये क्या आने वाला है? पॉजिटिव, एज पर द डायग्राम वी हैव ड्रॉन. सो इज इक्वल टू 100. So half gt square will cancel out and you get 50t is equal to 100. So they'll meet at 2 seconds. So इनकी जो टक्कर होगी it will be 2 seconds after one is dropped and another is thrown upward. Now where the question arises, where? So for where you can solve either for S1 or for S2. तो मुझे अगर हाइट बतानी है from ground then I will solve for S2. तो वेयर के लिए बहुत इजी है. पुट दिस टी इन इक्वेशन 2. ये हुआ वैन. अपन ने जो भी सॉल्व किया वैन, वैन दे कोलाइड, कितनी देर बाद कोलाइड कर रहे हैं. वेयर के लिए पुट टी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. तो हाइट आ जाएगी अपने पास. तो S2 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 माइनस हाफ. जी को आप 10 यूज करिए और टी स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा ये. तो S2 आ जा रहा है मेरे पास 100 माइनस 20. सो S2 आ जा रहा है मेरे पास 80. एज आई वाज टेलिंग कि S2 पॉजिटिव आएगा. आप देखिए S2 इज पॉजिटिव. इसका मतलब कहाँ पे ये टकरा रहे हैं? 80 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. एंड कितनी देर बाद टकरा रहे हैं? 2 सेकेंड्स. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ऑलराइट.
Well, so now let's see the next question. मैं सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है? लिखिए, a particle is dropped from height. Particle is dropped from height 100 meter, 100 meter at some instant. Another particle is thrown upward with 50 meter per second, is thrown upward with 50 meter per second from ground along same line after 1 second, of dropping of first particle. Find after how much time from dropping of first particle they will collide and where they will collide from ground. ठीक है, एक ही जैसा क्वेश्चन दिया, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ टाइम का थोड़ा सा चेंज कर दिया. पॉज करके जरूर सॉल्व करें. तो मेरा फर्स्ट पार्टिकल ड्रॉप कराया है तो u0 और t इक्वल टू 0 पे मैंने इसे ड्रॉप कराया है. हियर आई हैव द सेकेंड पार्टिकल. इसे मैंने 1 सेकेंड बाद थ्रो किया है, so it is not t equal to 0, it is t equal to 1. With how much speed in the same line I have thrown? U is equal to 50 meter per second. The separation between them is already 100 meters. ठीक है? Now I do not know where they collide. I assume they collide here. Okay? At some time, say t equal to t, measured from t equal to 0. तो मुझे ये t ही निकालना है. क्वेश्चन अब भी वैसा ही है. आपका डिस्प्लेसमेंट, इसने s1 ट्रैवल किया है और इसने s2 ट्रैवल किया है, बट डेल्टा t आर डिफरेंट. सी हियर, फॉर फर्स्ट पार्टिकल इफ आई राइट, for first particle, yes, what is u for first particle is 0. What is a? I am taking the same upward positive, downward negative, so a is minus g, displacement I want, and delta t is t for first. क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t सेकेंड, यानी उसे t सेकेंड चलने को मिले हैं. तो s1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ minus of g into t square, so s1 is minus of half gt square. So this is equation 1. Now for second particle, u is plus 50, a is minus g as you want, but remember delta t is t minus 1. इसे 1 सेकेंड कम मिला है तो t minus 1, t final minus t initial, so it's important. Use the same formula, so you get s2 is equal to 50 t minus 1 u into delta t plus half minus g t minus 1 का whole square. Yes, so what you get s2 is equal to 50 t minus 50 plus इसको स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा अपने को, कर लेते हैं. तो t स्क्वायर plus 1 minus 2t, so you will get s2 is equal to 50t minus 50 minus half gt square minus half g plus gt. This is equation 2. Now you already know that your s1 is what? S1 is negative, s2 is positive. So you have this mod s1 plus mod s2 is equal to 100 as your equation 3. तो जो नेगेटिव पार्ट है उसका मॉड लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो आपको ये हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर लिखना है प्लस s2 की जगह एज इट इज जो टर्म है 50t
-50 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी प्लस जी टी इक्वल टू 100। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, कैंसिल हो रहा है। तो अपन देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास 50 टी आ रहा है, ये मेरे पास -50 आ रहा है, जी की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 10, सो 10 डिवाइडेड बाई 2 5 प्लस 10t is equal to 100. So I got 60t is equal to, see this is how much, 55, to that side will become 155, so t is 155 by 60. You can still cancel out. ठीक है, 5 से ही कर लो या फिर सीधा डिवीजन कर ले, तो 155 डिवाइडेड बाई 6, 0 से बाद में कर लेंगे, तो 6 से कितनी बार जाएगा, 2 बार 12 बची 3 35, 5 बार जाएगा 30 बची 5, 8 बार जाएगा बची 2। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो मैं समराइज करके यहाँ 83 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 10, तो मुझे लगभग आंसर आ रहा है 2.58 सेकेंड्स ऑलमोस्ट। सो ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगभग कितना टाइम लग रहा है उसे, 2.58 सेकेंड्स, और पुराने क्वेश्चन में कितना टाइम लगा था, 2 सेकेंड्स। सो 1 सेकेंड बाद इसने थ्रो किया, इट इज टेकिंग लिटिल मोर टाइम टू स्ट्राइक। नाउ वेयर, अब आपको क्या करना है, ये नंबर जो आपके पास आया है 2.58, आप इसे उठा के यहाँ पुट कर देंगे और आपको किसका आंसर मिल जाएगा, वेयर का। यू कैन सॉल्व इट, नॉट ए प्रॉब्लम, जस्ट मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बट जो आइडिया मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो आपको समझना है कि टाइम कैसे पुट करना है आपको इक्वेशंस में। ओके, चलिए, सो फटाफट से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि काइनेमेटिक्स, जो मैकेनिक्स एक बड़ा सा ब्रांच है, आप ऑलमोस्ट 1 साल मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, उस पोर्शन की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने काइनेमेटिक्स इग्नोर कर दिया, उस पर लापरवाही कर दी, तो आप रोएंगे फिर सिर्फ, है ना, या फिर आप पढ़ना छोड़ देंगे, तो ही केस होंगे। क्योंकि बाद के चैप्टर्स आपको अच्छे से तभी समझ आने वाले हैं जब आपने काइनेमेटिक्स को ढंग से समझा है, उसके तौर तरीकों को ढंग से समझा है। इसलिए मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ काइनेमेटिक्स, हर छोटी चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप लॉजिक्स फ्रेम करना स्टार्ट करें अभी। ओके, सो कम ऑन, कोई लापरवाही नहीं करनी है, जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ बिल्कुल करिए, और लेक्चर्स को बिल्कुल अटेंटिवली सुनिए, समझिए। ओके, और जो भी डाउट्स हैं फ्रैंकली आप पूछ सकते हैं, ग्रुप पे पूछिए, ज़्यादा अच्छा है, बाकी लोगों को भी फायदा होता है ना, तो कोशिश करिए कि आप ग्रुप पे पूछें। राइट द क्वेश्चन, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बलून, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बलून, इट्स ए हॉट एयर बलून, लिख लो ब्रैकेट में, हॉट एयर बलून। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, है ना, कि आग जलता रहता है, हवा से गुब्बारा ऊपर उठता है, कुछ लोग भी बैठे रहते हैं उसमें, है ना, मोस्टली बीचेस पे आपको मिल जाता है देखने के लिए, सी बीचेस। तो ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बलून मूविंग अप with velocity 5 meter per second, 5 meter per second. Who is moving? The balloon is moving. तो ये बलून है ना, और ये बलून ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इसमें कोई आदमी है, वो बॉल को ड्रॉप कर देता है। ठीक है, सो फुल स्टॉप लगा के लिखिए, इफ द बलून वॉज at 60 meter height from ground, at 60 meter height from ground, when the ball was dropped, full stop, find its height from ground when
ball touches the ground, ball touches the ground or strikes the ground. अच्छा, इसको डायग्राम बना लेते हैं अपन ताकि आपको समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है. तो एक बलून है, ठीक है, ए हॉट एयर बलून यू कैन कंसीडर, ओके, एंड उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं यहां पर, मस्त सैर कर रहे है ना, 3 पैर नहीं हो सकते इसके, तो ओके. और ये बलून है जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर उठ रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी. ये आपको दिया हुआ है कि जो बलून है उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. मैं वी फॉर बलून यूज कर रहा हूं और वो दी हुई है मुझे 5 मीटर पर सेकेंड, एज आई कैन रीड फ्रॉम द क्वेश्चन. यस, करेक्ट. नाउ हियर इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड. तो आप देखेंगे ज्यादा टाइम हम क्वेश्चन समझने में लेते हैं रादर देन इक्वेशंस अप्लाई करने में. तो ऐसे ही आपको होमवर्क में भी करना है. अब ये बलून बहुत बड़ा है, हम इसके साइज को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं. आप एक कोई भी मिड लाइन ले लीजिए, चलो यही ले लीजिए कि अभी इस मोमेंट पे इसको आप t इक्वल टू 0 बोल दीजिए. ये बलून कितनी हाइट पे है ग्राउंड से? 60 मीटर, ठीक है. और इसी टाइम पे ये आदमी क्या करता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं अपन. ये आदमी क्या करता है, एक बॉल को ड्रॉप करा देता है, ठीक है, एक बॉल को ड्रॉप करा देता है ऐसे हाथ से निकाल के. यहां पे इसके हाथ में बॉल है, इस बॉल, ठीक है, इज ड्रॉप्ड. थ्रो नहीं कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, ठीक है. अच्छा, अब बॉल ड्रॉप करा दी, बॉल गिरेगी, ग्राउंड को टच करेगी, तब तक बलून और ऊपर चला जाएगा. तो हम मान लेते हैं कि बलून अब इधर आ गया जब बॉल ग्राउंड को टच कर रही है, ठीक है. दिस इज द बलून, दिस इज द मैन, और ये देख रहा है बराबर बॉल कब टच कर रही है. और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब बॉल टच कर रही है, मान लो ये टाइम कितना हो गया, t सेकेंड्स, उस समय इसकी हाइट क्या है. दिस इज द क्वेश्चन. यस, तो ये सिचुएशन हमें सब कुछ बता रही है व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस केस. फर्स्ट ऑफ ऑल, बलून इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. अब आप बोलेंगे बलून पे यार ग्रेविटी क्यों नहीं लग रही है, तो बलून पे एक गर्म हवा जो है वो भी फोर्स लगा रही है, और ग्रेविटी का फोर्स और गर्म हवा का फोर्स कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए बलून का एक्सेलरेशन 0 है और ये ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है. ये अब भी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, vb, विच इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. अच्छा, व्हाट अबाउट द बॉल. अब मेरा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम सारे क्वेश्चंस, जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, है ना, कि मोशन का बिना ऑब्जर्वर के कोई मतलब नहीं है, पर मैंने अभी इतने सारे क्वेश्चंस में ऑब्जर्वर तो कहीं मेंशन ही नहीं किया, है ना. और आप में से किसी ने डाउट भी नहीं पूछा मुझे कि सर ऑब्जर्वर कहाँ है. तो ऐसा आपको एग्जाम में भी होगा कि ऑब्जर्वर बताया नहीं उसने. तो डिफॉल्ट ऑब्जर्वर कहां पर रहता है, ग्राउंड पे. ग्राउंड फ्रेम में हम सब सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन. तो जो व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, उसे ये जो हॉट एयर बलून के अंदर है वो वाला व्यक्ति, ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है. और इसका नाम अपन ले लेते हैं, मान लो ये अमित है, ठीक है. और नीचे खड़ा हुआ है इसका दोस्त से रोहित, ठीक है. रोहित ऑब्जर्वर है भाई, रोहित ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, हम ग्राउंड फ्रेम में ही सॉल्व कर रहे हैं. मुझे ये बताओ, रोहित अमित की वेलोसिटी कितनी बताएगा किसी भी टाइम पे, क्या बोलेगा, अमित कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है. अमित बलून के अंदर है भाई, और बलून कितने से जा रहा है, 5 से. तो रोहित क्या बोलेगा कि अमित की वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड. अब अमित, अब बताओ, मुझे ये बताओ, रोहित को अमित के फेस की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, इसके चेहरे की वेलोसिटी कितनी दिखेगी. अरे भाई वही दिखेगी 5 मीटर पर सेकेंड. पूरा का पूरा अमित 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाता हुआ दिखेगा रोहित को. अब अमित ने पकड़ा हुआ है एक बॉल, तो भाई बॉल कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा, एज सीन बाय रोहित 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा. सही बात. अच्छा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल एज सीन बाय अमित, जब बॉल अमित के पास है 0. अमित के पास बॉल है, रेस्ट में है बॉल, अमित ड्रॉप कर देता है उसे. तो जस्ट आफ्टर ड्रॉप व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू अमित, 0, क्योंकि ड्रॉप की है उसने. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू रोहित, सी, अमित का हाथ
और बॉल दोनों रोहित के फ्रेम में ऊपर जा रहे हैं कितनी वेलोसिटी से? 5 से। तो अमित अगर इस बॉल को छोड़ देता है, ठीक है, रिलीज कर देता है, तो अमित के फ्रेम में तो बॉल की वेलोसिटी 0 आएगी, बट रोहित के फ्रेम में बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? 5 अपवर्ड। हाँ जी, क्या बात समझ रहे हैं? अच्छा चलो आपको एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लो, है ना, कि आप कुछ दुखी है, मान लो आपके घर पे लेट पहुंचे और मम्मी पापा ने आपके एकदम थप्पड़ मार दिए 3-4, आप मुंह लटका के ऐसी सड़क पे घूम रहे हैं ना, ऐसा टेंशन में फुल कि भाई ये क्या हो गया। आप मस्त घूम रहे थे और आपका दोस्त है ना, वो किसी और दोस्त के साथ मस्त उसके स्कूटी पे बैठा हुआ है पीछे, है ना, अब मस्त एंजॉय करता हुआ जा रहा है। और जैसे ही तुम्हारे पास आता है, तुम बिल्कुल ऐसे खड़े हुए है ना, ऐसे रोड के कॉर्नर पे, वो यहाँ से स्कूटी से आता है और अपना हाथ फैलाते हुए ऐसे मस्त हाथ फैला देता है एकदम डीडीएलजे वाली स्टाइल में, है ना, और उसका हाथ तुम्हारे ऐसे खट से तुमको थप्पड़ पड़ जाता हूँ, आगे खुलती है, कौन था? देखो, अरे ये तो दोस्त है मेरा, और तुम भागते हो पीछे, रुक तुझे बताता हूँ मैं। बेचारा रुक भी जाता है, तुम लड़ने लगते हो उससे, है ना, बोलता भाई मुझे पता ही नहीं था कि तू खड़ा हुआ है, मैं तो ऐसे हाथ फैला रहा था, मैंने थप्पड़ थोड़ी मारा है। थप्पड़ तो तब मारा जाता है ना जब मैं हाथ को कुछ वेलोसिटी दूं। और बोलेगा मैंने तो कोई वेलोसिटी नहीं, मैं तो सिर्फ हाथ ऐसे फैला के रखा हूं। पर तुम गलत हो गया, नहीं भाई तुम्हें भी जोर से थप्पड़ पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने जब हाथ फैलाए तो उसके रिलेटिव, तुम्हारे दोस्त के रिलेटिव हाथ की वेलोसिटी 0 है, ठीक है, पर वो एक स्कूटी पे था, स्कूटी चल रही थी तो हाथ भी चल रहा था, तुम खड़े थे ग्राउंड पे तो तुम्हें चलता हुआ हाथ तुम्हारे मुंह पे पड़ा। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ हाथ with respect to the friend? 0. Velocity of earth with respect to you standing on the road is equal to velocity of the scooty. I hope you are getting this idea. So in frame of Rohit, okay, in frame of Rohit यानी ग्राउंड फ्रेम, हालांकि हमने मेंशन नहीं किया पर हम सब कुछ करते हो ग्राउंड फ्रेम में ही रहते। बॉल की मोशन स्टडी करते हैं। बॉल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। नोट दिस इज द की पॉइंट हियर, ठीक है। तो ये बॉल जैसे ही ड्रॉप की जाएगी, रोहित को ये बॉल ऊपर जाती हुई दिखेगी 5 मीटर पर सेकेंड से। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रोहित को ये बॉल कैसी दिखेगी कि ये बॉल ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, रेस्ट पे आई और फिर नीचे आई और यहां टकराई। और अमित को कैसी दिखेगी कि बॉल सीधी नीचे आई। दोनों को दो अलग अलग चीजें दिखेंगी पर टाइम सेम दिखेगा। तो मान लो कि t इक्वल टू टी पे बॉल टकराई, है ना, और जिस मोमेंट पे बॉल टकराई है उसी मोमेंट पे हमें बलून की हाइट चाहिए। अब बलून की हाइट पहले देख लेते हैं भाई, कैसे निकालेंगे। तो बलून की हाइट बहुत इजी है। बलून कितना मूव किया आप ये तो फटाफट निकाल सकते। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून, है ना। तो मैं साइड में बलून के लिए सॉल्व कर देता हूं। सो फॉर बलून ग्राउंड फ्रेम में कैसी मोशन कर रहा है वो? यूनिफॉर्म मोशन। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू द टाइम इंटरवल। So displacement of balloon is equal to velocity 5 into time interval t. So height आ जाएगी मेरे पास 60 plus 5t. अब मुझे अगर t मिल गया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। t कहां से मिलेगा? मोशन ऑफ बॉल से। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में +5। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, अच्छा एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे ही अमित ने बॉल रिलीज कर दी, अमित का बॉल पे कोई कंट्रोल नहीं है। बॉल किसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है? ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन इज -g, delta t is t you want, and your displacement of ball, can you tell me displacement of ball? तो बॉल की इनिशियल पोजीशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर गई, नीचे आई, ये फाइनल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल and this is what? -60. This is an important point. This is -60 meter. You are interested in time. Did you get why displacement of ball is -60? बॉल कैसे भी रास्ते से आए, forget about it. इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और फाइनल पोजीशन इज बिलो इनिशियल पोजीशन. सो डिस्प्लेसमेंट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड. इट इज -60. यूज s इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस हाफ डेल्टा टी का स्क्वायर. So -60 is equal to
5t प्लस हाफ, g की जगह माइनस, a की जगह माइनस g, जिसे मैं माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखूंगा. सो डेल्टा t इज t. सो आई गॉट माइनस 60 इज इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर. मैं 5 से कैंसिल कराया इसे 12 टाइम्स, सो माइनस 12 इक्वल टू t माइनस t स्क्वायर. आई ब्रिंग इट टू दिस साइड, so t square minus t minus 12 equal to 0, and I solve for time in this quadratic. So I can write t square minus 4t plus 3t minus 12 equal to 0. 4 में से 3 गया, 1 बचा, 4 इंटू 3 12. आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती होगी. सो यू कैन राइट t कॉमन, सो यू कैन राइट t minus 4. यस, क्या कॉमन निकाला आपने? t कॉमन निकाला और दूसरा फैक्टर बनेगा t plus 3 equal to 0. So t is 4 सेकेंड एंड t is माइनस 3 सेकेंड. एज आई टोल्ड यू, नेगेटिव टाइम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. सो बॉल कितनी देर बाद हिट कर रही है? 4 सेकेंड के बाद. आप इसे पुट कर दीजिए तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी? किस हाइट पे होगा बलून? अभी फटाफट निकाल लो. हाइट आ जाएगी आपकी 60 प्लस 5 इंटू 4 यानी 20, यानी बलून कितनी ऊंचाई पे होगा अभी? 80 मीटर. So I hope you got the purpose of this question, कि ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं. Just to tell you कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसे रिलीज कर देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में वही होगी जो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है ग्राउंड फ्रेम में. ठीक है, नोट दिस पॉइंट. ओके, चलिए. तो एक नोट लिखते हैं अपन. लिखिए, इफ एनी बॉडी इज dropped, anybody is dropped from a moving platform, then initial velocity of the body will be same as velocity of the platform at the instant of release. जिस इंस्टेंट पे आपने रिलीज किया, at the instant of release with respect to ground. However, acceleration of the body just after release and an upcoming journey will be equal to acceleration due to gravity, not acceleration of the platform. Will be equal to acceleration due to gravity, not acceleration of the प्लेटफॉर्म. तो अगर बलून एक्सेलरेट कर रहा होता कुछ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो क्या बॉल का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता आफ्टर ड्रॉप? नहीं, बॉल का एक्सेलरेशन यही आता. तो उससे चेंज क्या आता? फिर चेंज यहां आ जाता कि बलून की मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी हो जाती और यहाँ पे इक्वेशन लगती इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बलून इनटू डेल्टा टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बलून इनटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं. तो कल के लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की. ठीक है, विच इज इंटरेस्टिंग एंड नॉट टफ एट ऑल. इसी से आगे बढ़ेंगे. बट हाँ, अगर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का ये पोर्शन अगर आपको क्लियर नहीं है, तब तक आप प्रोजेक्टाइल सॉल्व नहीं कर पाएंगे. थिंग्स आर टू मच लिंक्ड अप. Okay, so I want you to go through this portion of motion under gravity once again, see the questions and get ready for understanding projectile motion in next lecture. All right, thank you.